Good morning, my dear student. After completing of chapter number 4, we have done so many practicals of chapter number 4, right? I'm starting here chapter number 5. That is your Microsoft Excel. So, let's start our Excel. Student, this is also part of your Microsoft as like Microsoft PowerPoint. One more program is here, Microsoft Excel. You have learned so many things like Word, PowerPoint application of Microsoft Office Suite. In this chapter, we will learn about another application of Office Suite, that is Excel, Microsoft Excel. So let's start. Here we will discuss in this video introduction, features, and how to start the Excel, interface and components. Okay, let's start. First of all, here is introduction. It means what is the basic concept of Excel. Excel is very popular spreadsheet program. It allows you to create and maintain the data in tabular format. Student, here is also the records is submitted, or we can say records maintained with the help of table. Table means tabular format where the rows and columns combination means रोज और कॉलम्स में हम लोग अपने डेटा को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. So with the help of Excel, what is the difference between MS Word and Excel? First of all, we have to learn here all records is maintained in the tabular format, but in Word this is not possible. This is possible, but where there is only using for entering the data. And one more thing is important here, it is always used for maintaining the records which is in the number format, or we can say accounts purpose, for calculation purpose. So we can say also this Excel is commonly used for storing, structuring and manipulating the numerical values or information called as data in form of rows and columns. As I have said to you कि आप इसके अंदर जो भी चीज़ यूज़ करेंगे बेसिकली आप उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे कि हमें किसी नंबर की फॉर्मेट में हमने जो भी कुछ लिखा है उस पर हम कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकें. इट इज़ मेनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, टू क्रिएट सैलरी एंड सम अदर ऑपरेशंस. बहुत सारे ऑपरेशंस उनकी सैलरी को क्रिएट करने के लिए, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, और बहुत सारे ऑपरेशन उनकी उन रिकॉर्ड्स पर लगाने के लिए हम बेसिकली एक्सेल को यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हियर फीचर्स ऑफ एक्सेल. एक्सेल अलाउज यू टू क्रिएट वर्कशीट इन द फॉर्म. बेटा वर्कशीट क्या होता है? एज लाइक योर बुक पेज. आपकी एक बुक है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्क बुक. एंड द पेज ऑफ योर बुक इज कॉल्ड वर्कशीट. So create worksheet much like paper ledger that can perform automatic calculation, जिस पे हम automatically calculation को perform करा सकते हैं. Each Excel file is a workbook that can hold many worksheets. Okay, I understand these things. Each Excel file, जो आपकी Excel file है उसके अंदर क्या है? वर्कबुक है, as like book. आप एग्जाम्पल के लिए से बुक लेके मानिए, that can hold many worksheets means pages. एक बुक के अंदर कितने सारे पेजेस होते हैं? बहुत सारे होते हैं. सो बुक इज एज अ वर्कबुक इन एक्सेल एंड पेजेस ऑफ बुक इज कॉल्ड वर्कशीट इन एक्सेल. सो ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक दैट कैन होल्ड मैनी वर्कशीट्स. क्विक डेटा एंट्री कैन इजीली बी डन यूजिंग ऑटोफिल ऑपरेशन और ऑप्शंस. आपके अंदर इसके अंदर बहुत सारे ऑटोफिल, फ्लैश फिल, बहुत सारे फीचर्स इस तरह के दिए गए हैं कि हमें सारी डेटा एंट्री को एंटर नहीं करना पड़ता. बहुत सारी एंट्री ऐसी होती हैं जो सिमिलर टाइप की होती है, हम उन्हें एक साथ इजीली एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोफिल ऑपरेशन. ओके, डेटा कैन व्यूड इन ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट्स की फॉर्म में आप उसको डेटा को देख सकते हो. मतलब आप जो भी चीज़ इसमें यूज़ करते हो आप उसको एज अ चार्ट्स की फॉर्म में शो कर सकते हो, जिससे कि आपको इजीली वो डेटा समझ में आएगा और आपको जिसके सामने प्रेजेंट करना है या किसी को देना है या कुछ भी रिकॉर्ड बताना है, समझाना है, वो आप उसे इजीली समझा सकते हो.
So it is very useful for every type of data records or maintaining the records. Next is we have beta in your book getting start with the Excel. किस तरीके से हम Excel को स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी अभी, just after 1 minute. Okay, see first thing, Microsoft Excel interface. And on opening Excel application backstage view मीन्स जब आप एक्सेल को ओपन करते हो उसका जो बैक स्टेज व्यू होता है अपीयर्स विद द नंबर ऑफ प्रीसेट टेम्पलेट. बहुत सारे टेम्पलेट्स उसके अंदर ऑलरेडी बने हुए. प्रीसेट मतलब पहले से बने हुए टेम्पलेट्स मतलब जिस पे हम वर्क करते हैं वो ऑलरेडी किस किस फॉर्मेट में, बहुत सारे फॉर्मेट में बने हुए हैं. क्लिक द ब्लैंक वर्कबुक टेम्पलेट्स टू स्टार्ट विद अ न्यू वर्कबुक. आप ब्लैंक को, अगर आप वर्कबुक को टेम्पलेट को स्टार्ट करने के लिए क्लिक करते हो तो यू विल सी न्यू वर्कबुक और यू कैन चूज एनी टेम्पलेट टू यूज इट. आप कोई सी भी टेम्पलेट को यूज भी कर सकते हो जो वहाँ पहले से बने हुए हैं. ओके ओके नेक्स्ट इज यू हैव, we will discuss after opening our Excel file. See, here is your Excel file. You can see so many things are there as like in your book also shown in figure number 5.5 which is given on page number 61. First one is you have to see on opening Excel application. बेटा आपने first of all आपको पता होना चाहिए open कैसे कर. I have typed here MS Excel. मैंने यहाँ MS Excel टाइप किया. MS Excel टाइप करने के बाद मुझे ये यहाँ पे Excel फाइल ओपन हो गई. ओके, सो दिस इज योर इंटरफेस. मीन्स जहाँ पर आप यूजर और सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में, इज कॉल्ड इंटरफेस. इंटरफेस किसको बोलते हैं बेटा? इंटरफेस इज कॉल्ड व्हेन यूजर एंड सॉफ्टवेयर कैन इंटरेक्ट टू ईच अदर. आपस में इंटरेक्ट कर सके, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके. दिस इज कॉल्ड इंटरफेस. एंड इंटरफेस के थ्रू ही हम सारे डेटा को स्टोर, manage and apply different things on the particular sheets is called interface. Okay, so here I want to see you that interface is an opening Excel application backstage view. आपका जो backstage view is called interface. And click the blank workbook. आपने मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है. अगर मैं इसमें न्यू पे क्लिक करती हूँ और ब्लैंक वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, क्रिएट जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ न्यू ब्लैंक बुक वर्कबुक हमारी सिलेक्ट हो गई. ओके, ऑन क्लिकिंग ब्लैंक वर्कबुक द फॉलोइंग विंडो अपीयर्स. इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी विद द एम्प्टी वर्कशीट. एक एम्प्टी वर्कशीट है यहाँ पे. वर्कशीट मतलब बहुत सारी शीट्स जहाँ आप ना डेटा को एंटर करोगे, जहाँ पर आप अपने डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. ओके, दिस इज कॉल्ड वर्कशीट. हियर इज रिटन ऑलरेडी एट द बॉटम साइड शीट 1, शीट 2, शीट 3. ये डिफरेंट शीट्स हैं जिन पे आप, एक वर्कबुक है ये सिंगल, इसमें आपके 3 शीट्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं और आप इसमें और ज़्यादा शीट्स का भी एंटर कर सकते हो. सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ एक्सेल. नाउ दिस इज कॉल्ड द मेन इंटरफेस ऑफ एक्सेल. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एज शोन. बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर शो होते हैं. अब मैं आपसे बात करती हूँ इंटरफेस के अंदर आपको जो फिगर नंबर 5.5 में बताया गया. सी, हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपके ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं. आप उसमें डायरेक्टली जा सकते हो. आपको किसी पर्टिकुलर टैब की ग्रुप के अंदर जाने की नीड नहीं होती है. आप डायरेक्टली यहीं से सर्च कर सकते हो. नेक्स्ट इज गिवन हियर इज टैब्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू. These all are called tabs. This is window control button, minimize, maximize and close. Okay, this is file tab. Here home ribbon, the home tab. This is, there so many groups are available. This is called ribbon. कि आपके किस particular tab के अंदर कितने groups available. This is called ribbon. ये सारे आपके ribbons हैं. ribbon आप इसको बोलेंगे. Name box means किस सेल पर आपने क्लिक किया हुआ. सपोज आई हैव क्लिकिंग ओवर देयर, दिस इज द I column and 8 cell. So I8 is written here. This is called name box. This is called formula bar, जहाँ पर आप formula put करेंगे. Okay, this is rows over here. The left side, top side, these are columns. Okay, active cell means जिस पर हमने क्लिक किया हुआ, जो
ब्लैक कलर की बॉर्डर से बना हुआ है. सपोज आई एम क्लिकिंग ओवर देयर, दिस इज द एक्टिव सेल हेयर. ओके. Pointer means जहाँ आप point कर दो. This is plus sign. At the bottom side you can see sheet tab. Here status bar कि आपका क्या status है, आप क्या वर्क कर रहे हैं, रेडी है नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड sheet tab. Status bar, sorry. Okay. Here is scroll bar. आप अपनी शीट को अगर बहुत सारा डेटा हो जाता है तो आप इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हो. This is called zoom control. कि आपने बहुत सारा रिकॉर्ड लिख दिया है लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, तो आप इसको मैक्सिमाइज और जूम आउट और जूम इन कर सकते हो. वर्कशीट व्यू बटन, आप अगर वर्कशीट देखना चाहते हो दिस इज कॉल्ड वर्कशीट व्यू बटन. सो दीज आर ऑल द गिवन इन योर एक्सेल विंडो. नाउ आई एम talking about particular components also we have discussed in our Excel window, like file button, टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट बार जहाँ आपकी वर्कबुक का नेम लिखा हुआ है. दिस इज बुक 2. आई हैव रिटन ऑलरेडी वन बुक, so here is book 2. This is called title bar. Quick access toolbar we have discussed, window control button we have discussed, and so many things which we have discussed, like tabs and ribbons also discussed. Name box, formula bar is here. We have to written the formula over here or the cell also. हम दोनों में फॉर्मूले को लिख सकते हैं. वर्कबुक मीन्स जिस बुक के अंदर हम काम कर रहे हैं, और these are the sheets. We have so many sheets here. We can add so many sheets or more than 3 sheets. Rows, columns, okay, active cells, scroll bar, sheet tab, view buttons कि हम अगर नॉर्मल पेज देख रहे हैं या फिर हम पेज लेआउट देख रहे हैं, ये सारे व्यू टैब के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं. Okay, so here is your introduction of your Excel file. I hope you understand these things. In next class we will discuss how to enter the data, how to save the file, how to opening the file or close the files. Okay, thank you.